Welcome students, welcome to CFC Jaipur. So I'll be now continuing with the part 3 of projectile motion. So in the last video we discussed how to deal with a motion when thrown at an height h and with an elevation of angle theta. So आज हम बात करने वाले हैं कि अगर हमने किसी h हाइट से बॉडी को थ्रो किया हॉरिजॉन्टली, कि पिछले केस सिंपल है तो समझते हैं इसको कैसे डील करते हैं. सो आज भी हम क्या करेंगे, we'll put our origin here, x axis and y axis like this. Fine. So पार्टिकल का मोशन किस तरह से होगा, बिकॉज हमने उसको हॉरिजॉन्टली थ्रो किया है, सो इट विल बी लाइक दिस. फाइन. So let us now write the parameters in x direction and y direction. Look, velocity in x direction is u, okay, and velocity in y direction is 0. पार्टिकल को हमने हॉरिजॉन्टली थ्रो किया है, सो उसकी कोई भी वर्टिकल वेलोसिटी नहीं होगी. फाइन. नाउ एक्सेलरेशन इन x direction is 0 and acceleration in y direction is g with a negative sign due to sign convention. Fine. So now we'll be using the equation of motions which are v is equals to u plus at, s is equals to ut plus half at square. तो हम इन इक्वेशंस को बार बार लगाते रहेंगे और हमारे सारे डेरिवेशंस इन्हीं से होने वाले हैं. फाइन. सो फर्स्ट वी विल बी यूजिंग द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन टू कैलकुलेट द वेलोसिटी एट एनी टाइम t. सो लेट्स राइट इट. वेलोसिटी एट एनी टाइम t in x direction would be u plus 0 into t, which is the acceleration. These terms cancel out. So velocity in x direction will always be u. So velocity in x direction will always be u. Same. Now velocity in y direction would be 0 initial velocity minus g into t. So velocity in y direction would be minus gt. Fine. So किसी भी टाइम t पे मुझे पता है कि x डायरेक्शन में वेलोसिटी हमेशा u ही रहेगी और y डायरेक्शन में वेलोसिटी आएगी माइनस gt. माइनस साइन से नोट्स कि वेलोसिटी इन y डायरेक्शन कंपोनेंट है वो नेगेटिव डायरेक्शन में. सो एट एनी टाइम t वेलोसिटी वुड बी दिस. फाइन. सो which would be फाइन. सो ये बहुत जनरल एक्सप्रेशन रहे, ठीक है. तो अब हम इसमें सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करते हैं एंड लेट्स सी व्हाट रिजल्ट्स वी आर गेटिंग आउट. सो दिस इज द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल ऑफ द पार्टिकल इन द टाइम ऑफ फ्लाइट, सो विच इज नोन एज रेंज. सो इफ यू वांट टू राइट इक्वेशन फॉर रेंज, कैलकुलेटिंग रेंज, सो रेंज इज द हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट इन एक्स डायरेक्शन विच विल बी u in x direction is u, t, acceleration in x direction is 0. So range is ultimately ut. Simple. Now we'll see how to calculate height and time of flight. So h is the height or the distance traveled by the particle in the vertical direction during the course of its motion. So we'll be now using the second equation of motion. So h, and I would be using it with a negative sign because h is measured from this point like this. So this displacement from this origin is actually minus h. So minus h is equals to velocity in y direction which is 0. Acceleration in y direction is negative g into t square. So minus h is equals to minus half gt square because acceleration in y direction is minus g. Got it? So यहाँ से मुझे मेरा टाइम ऑफ फ्लाइट मिला which is 2h by g square root. Fine. So this is the time of flight, that is the time taken by particle to move from its initial position to the ground level. So root 2h by g ये टाइम है जिसमें पार्टिकल अपनी इनिशियल पोजीशन से ग्राउंड पे पहुंच जाएगा. Fine. So this is the time of flight. Now if we want to calculate range, so range is basically u into t. ये हमने देख लिया. So range क्या निकली यहाँ से, u into t. t is root 2h by g. u into root 2h by g. So this is the final formula for range. फाइन. सो ये बहुत सिंपल केस है.
मतलब जिसमें हमने पार्टिकल को बिल्कुल हॉरिजॉन्टली थ्रो किया, कोई एंगल ऑफ एलिवेशन नहीं है। तो इसमें जो मेरे सबसे काम की चीज़ ये है कि मुझे फॉर्मूला याद होना चाहिए कैसे निकला। टाइम ऑफ फ्लाइट विच इज √2h/g एंड रेंज इज u√2h/g। फाइन। तो दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म्स। वेलोसिटीज को हमने कैलकुलेट किया किसी भी टाइम t पे, और किसी भी टाइम t पे जो मेरे पास नेट वेलोसिटी निकली वो इस तरह से निकली, जिसकी वैल्यू इस तरह से हमने डिराइव करी। एंड सो दिस इज द एनालिसिस ऑफ दिस काइंड ऑफ वेरिएशन इन प्रोजेक्टाइल मोशन। सो ये CBSE लेवल पे और JEE मेंस लेवल पे क्या पता कभी पूछ सकते हैं कि बहुत सिंपल एनालिसिस है, ये हमें आना चाहिए, बिकॉज इसको समझ के हम आगे जो नेक्स्ट वेरिएशन होंगे इस मोशन में वो हम समझ सकते हैं ईजिली। So this is all about it. So I'm concluding with horizontal motion. So अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और कोई भी क्वेरीज हो तो उसे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। So thank you.